हम लोग काफ़ी अलग हैं, मैं बहुत बोलता हूँ, उसको इतना बोलना पसंद नहीं है। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, मैं इतना डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। बट कनिष्क तुम्हारा पैशन है, तुम तो चाहते हो कि तुम सास-बहू की एक सीरियल लिख दो मेरी माँ के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि अच्छा तुम दोनों में से हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है? यार देखो ऐसा कुछ We met on Grindr. I came to his friend's place where he was. somebody asked कि कुछ तो पूछा है ना? I was like he is my boyfriend and that was the first day I met him. I don't know why did I say that. So फिर इस तरीके से वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया। Hi, my name is Fenil. प्रियांक को तो आप जान ही चुके हो एंड अब मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। सो माय नेम इज़ फेनिल। आई वाज बोर्न इन केरला, ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरी सारी स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई एंड आई वाज बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट। मैं ज़्यादा इंटरेक्ट इतना करता नहीं था, बट येस आई वाज क्रिएटिव एंड आई लाइक टू ड्रॉ, आई लाइक टू डांस। सो उस तरीके से somehow I was able to express myself. But yes, जैसा प्रियांक ने बोला, I was also a bit feminine and हर बच्चे की तरह मेरा भी मजाक उड़ाया जाता था. But you know, I never used to really feel down about it. I was never open in school. I was not open to anyone. I was very closeted. Even in college, when I went to Bhopal to pursue my architecture course, वहाँ पे भी I was shut off. बट येस आई वाज थोड़ा बहुत सोशल, थोड़े बहुत फ्रेंड्स बने, एक गैंग बना, साथ में रहने लगे। देन जब वो कनेक्ट आया उन लोगों के साथ, इतनी क्लोज फ्रेंडशिप बनी, उनके सामने मैं ओपन हुआ एंड आई वाज रिलीव्ड दैट देयर आर पीपल हु कुड अंडरस्टैंड मी, देयर आर पीपल हु आई कुड बी ओपन विद। आफ्टर कॉलेज व्हेन आई वेंट बैक टू दिल्ली टू pursue my career, there also I was not interactive with any gay people, or I was not that much part of the community. Uh, Slowly, I started to explore online apps, dating. Then I understood about parties and weekly events जो होते हैं. And धीरे धीरे I started to come out of my shell and meet people. And I also always made sure I'm meeting people in public because I was too scared. I think late 20s, I was in my late 20s, घर पे शादी की बातें शुरू हो गई कि फाइनल अब तो शादी करना पड़ेगा। मैं हमेशा टाल देता था कि नहीं मैं नहीं करूँगा शादी, मुझे शादी-वादी नहीं करनी। मज़ाक-मज़ाक में टाल देते थे। But one night my mom sat with me, she's like, "Fenil, what is the reason? Like तुम ऐसे ही टाल देते हो, ऐसे ही मज़ाक उड़ा देते हो। You have to now tell me क्या रीज़न है?" And my family is like a bit conservative Christian family, so you know the environment uh, that घर पे हो. My father is from Delhi police, and you can imagine the strictness that he has. So I was like कि नहीं शादी तो नहीं, बट शी वॉज वेरी परसिस्टेंट कि नहीं जानना है मुझे क्या क्या दिक्कत है, क्या कमी है। एंड देन आई वाज लाइक कि आई फिट, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। आई कुड सी हर रिएक्शन कि शी इज थिंकिंग, शी इज प्रोसेसिंग इट। ओके, हाँ मेरे को लड़कियां पसंद नहीं है, मेरे को लड़के पसंद है। एंड देन शी वाज लाइक ओ ओके, अच्छा। हर फर्स्ट रिएक्शन वाज कि आई एम concerned that you were living your whole life without truly being open to us. And that statement, I was like, shocking to me. I mean, instead of being the expected reaction of society, ghar, parivar, this was her first reaction, and that felt very good. And she then started exploring. She then started exploring about the topic about homosexuality, LGBT communities, and that felt Okay. very encouraging. She then told my sister, my father, and dad से मेरी ऐसा formal discussion नहीं है उसके बारे में, but I know he knows, and there's a mutual understanding. Then
देन द रियलाइजेशन केम टू हर कि घर में अब बहू नहीं आएगी एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली एज अ पेरेंट कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों के लिए, तो वो शी हैड टू देन एडजस्ट हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी एंड then I was truly open. Then I was like, I don't care what people think. I don't care what people say. I'm going to live my life however the fuck I want. Sorry. And so I was unapologetic. Like, my parents were there with me, and I was being me. As Priyag mentioned, we met on Grinder. I came to his friend's place where he was visiting. We talked, we interacted. It was very natural. It was very fluid. And from there, we went to a party. We had a lot of fun. His friends also came. And वहाँ से फिर हमारा किस्सा साथ का चालू हुआ। हम लोग फिर रोज ऐसे नॉर्मली बातें करते रहते थे व्हाट्सएप पे, हाय हेलो। और उसी दिन सबसे एक स्ट्रेंज सी बात हुई थी जब हम पार्टी में गए थे। वी वेंट टू मॉलिक्यूल आई Yeah. थिंक, एंड दैट वाज अ स्ट्रेट पार्टी। तो वहाँ पे वी वर वेरी क्लोज, आई मीन वी वर नॉट किसिंग ईच अदर दो। सो समबडी आस्क्ड कि कुछ तो पूछा है ना। आई वाज लाइक ही इज माय बॉयफ्रेंड, एंड दैट वाज द फर्स्ट डे आई मेट हिम। आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट, बट मुझे नहीं पता था। वो कहते हैं ना कभी कभी जबान पे सरस्वती जी बैठ जाती है, तो मे बी दैट वाज दैट हैपेंड। और उसके बाद it was so fluid. मतलब I don't have to fake it, or I don't have to be the best thing about being in relationship with Fenil, that it is effortless. I mean, you don't have to put any sort of effort to make it happen. I mean, it is there. It is there. That's it. We met actually a day after my birthday. Yeah. And after meeting, we went to Molecule. वहाँ पे हम सब लोगों के साथ नाचे फिरे. I think a month went by of meeting on the weekends, and on November जिसके घर हम मिले थे उसी के घर पे इसने बोला कि आ जाओ, और भी दोस्त आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे। एंड आई वाज लाइक ठीक है। आई थॉट कि फ्रेंडली इंटरेक्शन या जैसे फ्रेंड्स हैंग आउट करते हैं वैसे ही कुछ होगा। आई वेंट देयर एंड डोर वाज ओपन्ड बाय समबडी एल्स एंड आई वाज लाइक अच्छा प्रियंका है, एंड हाँ वो अंदर है, तू चल ना मेरे साथ। तो वी वर लाइक वॉकिंग एंड अंदर आए एंड आई वाज लाइक every wall was filled with red heart balloons and there were flowers and these many people who I've never met, and I'm like what is happening? And then he literally went down on his knee and gave me a silver ring. God, you don't have to mention No, it. no, now he gave me a gold ring. So, and I was like blown away, and what that was really special. And everyone was so supportive. Then party करी, खूब मौज किया, मस्ती करी, and that night was very special. तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें क्या मुझे anticipation बहुत थी? अच्छा लगता है कि मैं इसको सरप्राइज करूँ। मैं जैसे वो किया, कभी मैं पूरे एक ऐसे थाली बनाता हूँ घर में कि 10 तरीके की सब्जी हो, इसको अच्छा लगना चाहिए, इसको लगना चाहिए आज कुछ अच्छा हुआ है, आज कुछ नया हुआ है। मुझको वो प्लेन बोरिंग लाइफ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। जैसे बर्थडे था तो पूरा घर डेक, मतलब मेरे को ना मज़ा क्या आता है कि मैं अपने ऑफिस के टाइम में से, ऑफिस के काम में से जैसे भी 10 मिनट निकाल के मैं ये कर पाऊँ, वो कर पाऊँ। आई लाइक टू बी प्रोडक्टिव, आई कैन नॉट जस्ट सिट आइडल। अगर मैं खाली बैठूंगा तो आई थिंक मैं पागल हो जाऊंगा। तो मैं ये सब करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई मीन मेरा दिमाग बहुत क्रिएटिव है, तो वो ये सब करने के लिए मुझे मजबूर करता है, चंचल है। सो फिर हम लोग मुझे मिलने का बहुत मन करता था, क्योंकि मैं फिर हापुड़ चला जाता था वीकेंड्स के बाद ना। तो मुझे होता था कि फैनल से मिलना है, फैनल से मिलना है। तो हम लोग, मैं कभी भी इसको रैंडमली बोलता था आज फ्राइडे है, शाम को चलते हैं मनाली। हम हर हफ्ते घूमते थे। आई मीन कभी हम जयपुर हैं, कभी हम कुल्लू हैं, कभी अपन किधर भी घूम रहे हैं। और इतना सही लगता था, इतना मज़ा आता था घूमने में, और नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं, और नए नए खाने भी खा रहे हैं। इसने मेरे को काफ़ी सारे फैंसी फूड्स से इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि वरना मेरे को तो दाल मखनी, दाल चावल ये सब पता थे। वी एट पैनकेक्स और Yeah. कुछ क्या क्या था हाँ, पता नहीं, तुक्का। लसान्या Lasagna. तो कुछ वैसे वैसे खाने जो कि मैंने कभी खाए ही नहीं थे।
सो वो सब फेनिल फेनिल को ये सब करना बहुत पसंद है, लैक क्रॉस करके अच्छा। साउथ जली बन के रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा अलग हूँ, हम लोग काफ़ी अलग हैं। मैं बहुत बोलता हूँ, उसको इतना बोलना पसंद नहीं है। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, मैं इतना डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। बट ऐसे ही बोलते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। अगर मुझे मेरे जैसा बंदा मिल जाएगा तो फिर आई डोंट थिंक कि मैं उसके साथ रह साथ में रह सकते। पाऊंगा। सो ऐसा है, बट it is a good, I mean, it's a good daily life. आई मीन लाइक एवरी रिलेशनशिप, एवरी कपल, हमारे बीच में झगड़े होते हैं, वी हैव दोज डेज एंड वी हैव दोज डेज ऑफ लव। सो आई डोंट थिंक अ गे रिलेशनशिप और अ गे couple or a gay boyfriend is any different than a straight relationship. या इट इज़ लिटिल डिफरेंट। जैसे अभी हमारी मेड को लगता है कि हम दोनों भाई हैं और सबको पूरी सोसाइटी में लगता है कि हम दोनों भाई हैं, और हम कोई एफर्ट भी नहीं डालते उनको बताने के लिए कि नहीं नहीं हम भाई नहीं हैं, क्योंकि ठीक है, मतलब दे विल गेट टू नो इफ दे हैव टू नो Yeah, इट। I या mean that's the sad reality of society. Matlab, obviously, you can't be as open as you want. या There is a certain level of barrier that you need to keep, and but yeah, we are open to the people who are close to us. पूरे सोसाइटी में सबको लगता है कि हम लोग भाई हैं। दीदी हमारे यहाँ जो खाना बनाने आती हैं, उनको भी लगता है कि हम भाई हैं। तो हमने करवा चौथ पे हम हर साल एक दूसरे के लिए फास्टिंग करते हैं। तो दीदी बोले कि आज खाना नहीं खा रहे हैं, क्यों? अच्छा, भैया मैंने पहली बार देखा है भाई भाई के लिए करवा चौथ रख रहा है। लाइक दीदी, हाँ, करवा चौथ उन्हीं के लिए रखते हैं ना जिनसे आप प्यार करते हो, तो भाई भाई से भी प्यार कर सकता है ना। तो भाई के लिए। तो फिर भैया दूज पे आ रही है, कहती है भैया दूज पे भी भैया को गोला दे के राखी बांध दो। मैंने बोला दीदी आप रहने दो, आपसे ना हो पाएगा। We decided, I think June 2022, या कि now we have to live together. ये going back to Hapur weekends में मिलना थोड़ा हेक्टिक हो रहा था। एंड ही इज लाइक कि मैं बैग पैक करके आ रहा हूँ, तुम घर ढूंढ दो। एंड आई वाज लाइक ओके। वी फाउंड अ हाउस, वी स्टार्टेड लिविंग, एंड धीरे धीरे घर की चीजें बनने लगी, घर बनने लगा। एंड आई थिंक दिस फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स वी बॉट अ हाउस टुगेदर, या and something that I think is a milestone achievement in one's life. And हम साथ में रहे, चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी थी, चीज़ें आई, घर बन रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा भी आए थे, अंकल आंटी तो अभी केरला में है। सो वो लोग, हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम गे कपल हैं तो वो कुछ अलग ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे बेटा बहू वाली फीलिंग देते हैं वो लोग कि हाँ, साथ में बैठ के हवन में तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें भी पहले सीधा पैर अंदर रखना है घर में। इतना मजा आता है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली, एटलीस्ट मेरे को, पूरी दुनिया कुछ भी सोचती हो, मेरी फैमिली मेरे को ये रियलाइज नहीं कराती कि बेटा तू डिफरेंट है बिकॉज तू गे है। वो तो कहते हैं तुम बहुत बढ़िया हो बेटा, बस एक ही चीज़ है, तू कलेश थोड़ा कम किया कर जो कि मेरा पैशन है, बाकी सब बढ़िया कलेश, रहता है। यस, कलेश तुम्हारा पैशन है, तुम तो चाहते हो कि तुम सास बहू की एक सीरियल लिख दो मेरी माँ के साथ। आई मीन मेरे पेरेंट्स में वो थोड़ा ऑकवर्डनेस है, बिकॉज जितना ओपन इसकी फैमिली है उतनी ओपन नहीं है, बट येस देयर इज अ सपोर्ट। दे आल्सो केम टू आवर हाउस, एंड आई मीन व्हाट आई वुड से, थोड़ा ऑकवर्डनेस है, बट येस दे सपोर्ट अस। सो मुझे ऐसा लगता है अंकल आंटी को देख के कि अंकल से पहले कभी बात नहीं होती थी, क्योंकि अंकल दिल्ली पुलिस में थे और वो भी 6 फुट के इतने हट्टे कट्टे इंसान से आपको वैसे ही डर लगता है। सो मैं जब भी जाता था तो वो ही खुद से बोलते थे, और प्रियांक कैसे हो, ये वो। अब मुझे ये नहीं पता कि उनको पता है कि नहीं पता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो पता है। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि उनको पता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था वो ये सोचते हैं कि मैं दोस्त हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ, हम लोग केरला ट्रिप पे गए जिसमें कि फेनिल, मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई था, और अंकल आंटी ऑलरेडी उस टाइम पे केरला, उनके केरला वाले घर में गए हुए थे। तो फिर हम लोग सब वहाँ पे मिले, मेरी मम्मी उनके मम्मी पापा से मिली। फिर अंकल ने एक दिन उस टाइम पे टॉपिक छेड़ दिया कि देखो, तुम दोनों एक साथ रहते हो, इंडिया में लोग बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं। अ, देखो अगर तुम्हें बाहर जाना है तो बाहर जाओ। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, अंकल इतने कंसर्न्ड हैं हमारे लिए और हमारे भले के लिए चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो हमारे साथ। और
which means that finally he has accepted me, finally he has accepted us, कि हाँ भाई ये दोनों एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे। क्योंकि क्या कंसर्न रहता है पेरेंट्स का, जो कि आंटी का भी था, कि यार तुम गे हो ठीक है, कौन मिल जाएगा जो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगा? क्योंकि हम तो देखते हैं लोग 2 महीने के लिए बॉयफ्रेंड बनाते हैं, छोड़ दिया, 3 महीने के लिए बनाया, छोड़ दिया, तेरे पास 2 बॉयफ्रेंड है तो मैं 4 बनाऊंगा। वो एक उनका कंसर्न है कि भाई ये लोग अब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ये बस टाइम पास के लिए रह रहे हैं, ये दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा दिन भी सुबह के काम से स्टार्ट होता है कि अच्छा ये करना है, वो करना है, जॉय को घुमाना है, हमारा डॉग, मतलब हमारा दिन भी कोई डिफरेंट नहीं होता। सारा एक लिस्ट होती है जो कि हमें करना होता है, वो ऑफिस जाता है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। सो हमारी लाइफ एक स्ट्रेट कपल जैसी ही है, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं और अपने टास्क पूरे करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप अकेले ही लगे हुए हो एक जिंदगी को चलाने में। सो वो काफी अच्छा रहता है। Yeah. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि अच्छा तुम दोनों में से हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है? यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही हस्बैंड्स हैं, दोनों लड़के हैं तो दोनों ही हस्बैंड होंगे। बट ये है कि मेरे अंदर थोड़े लड़कियों वाले गुण ज़्यादा हैं, जैसे कि मुझे मे बी पेशेंस थोड़ा कम है, मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती है, और वो बहुत काम है। लाइक वो मेरे पापा की तरह बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है, वो उसका सबसे अच्छा ये है कि वो कहता है देखो अगर तुम्हें ये काम करना है, पहले उसको करने के लिए बेस बनाओ, ये नहीं कि बस कूद पड़ो उसमें और फिर तुम गलत कर देते हो, फैला देते हो, वो सब के चक्कर में वो हो जाता है, हबड़ तबड़ बोलते हैं ना। सो वो है। बट वैसे दोनों हस्बैंड्स हैं, बट इसमें मर्दों वाली क्वालिटी ज्यादा है, मुझ में कम है। सो आई वुड लाइक टू से टू ऑल माई कम्युनिटी पीपल दैट सबसे पहले करियर है, प्लीज फोकस ऑन योर करियर। उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई भी इंसान आएगा या नहीं आएगा, वो इस बात से डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो। ऐसे भी लोग हैं, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको रिलेशनशिप पे नहीं चाहिए, बट दे मेड श्योर दैट वो करियर में उन्होंने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आई एम नॉट सेइंग कि पार्टीज में मत जाओ, ये मत करो। बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। तुम्हें अगर किसी रिलेशनशिप में जाना है तो जस्ट गो, नॉट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ बॉयफ्रेंड। इफ यू वांट टू गो इनटू अ रिलेशनशिप, प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स नहीं रही, एक 4 महीने की थी और एक ये है। सो क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर। Yeah, I mean, in our community especially, there is this idea that people are very promiscuous and ये ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, relationship maintain नहीं कर पाएंगे. Like Priyank said, your first focus should be to have a stable base under you. And I think most of our friends have that. And based on that only they are able to explore, meet people, interact with people, get to know other stories. But be it in a way that you are also, contributing, you are also presentable in a way that you can meet those people. Right. And there is a negative impact about one negative point about our community कि there is a lot of backstabbing. Yes, straight couples में भी होता है, लड़कियों में भी बहुत होता है. But I mean, be happy for each other also. Be happy for others, for yourself, and we are a community. We are a have to community. stand together, Yes. and that is the way forward. मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि देखो, हम गे कपल हैं, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट पीपल। आई मीन वी आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी स्ट्रेट कपल। हम बिल्कुल वैसे ही हैं, हमारी भी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बस फर्क इतना है कि यार मेरे को लड़के से प्यार है, लड़की से नहीं है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो अलग है। हमारे घर में भी आओगे, मंदिर मिलेगा, हमारे घर में तो बल्कि जीसस भी है और गणेश जी भी है। तो हमारे घर में आपको सब कुछ मिलेगा और आपको हमारे घर में आके अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग लगेगा, ओह अच्छा ये तो गे लोगों का घर है, रेनबो नहीं है हर जगह। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट इट्स ओके टू बी गे एंड आई एम गे। Yeah, as a gay couple, I mean,
for any straight couple also, basis is to be there for your partner, to be caring for each other, to support each other, be it whatever. And I hope everyone, be it LGBT or QIA+. straight, Yeah, sorry. they do find that support in their life. अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है। कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं। अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए। अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।